ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। 7 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੈਦੀਪ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੈਦੀਪ, ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। जी नीलम, बिल्कुल देखिएगा, आज जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है 11 बजे से और जिसमें जो आज अपना बहुमत साबित करेंगे जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो अपना बहुमत साबित करेंगे। और इसमें जिस तरीके से अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं जिसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 का जाके बनता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास 41 जो है वो बीजेपी के विधायक है। निर्दलीय विधायकों की बात करें वो 7 है क्योंकि इसमें 6 निर्दलीय और एक हलोपा पार्टी जो गोपाल कांडा विधायक है, 7 विधायक ये हैं। तो इसमें जो टोटल आंकड़ा जाके बनता है वो 48 का बनता है। और उसके अलावा भी जो है बीजेपी को जो है जेजेपी के जो विधायक है 4 से 5 विधायक जो हैं, जिनमें अगर हम बात करें जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जेजेपी की तरफ से जो मंत्री रहे हैं देवेंद्र बबली वो वहां मौजूद थे, रामनिवास सुरजाखेड़ा वहां मौजूद थे, राम कुमार गौतम ने कल मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की थी, मुलाकात की थी, ईश्वर सिंह वहां पे थे, जोगीराम सिहाग वहां पे थे। तो ये 4 से 5 विधायक जो है वो भी बीजेपी के संपर्क में है। तो बिल्कुल आज जो फ्लोर टेस्ट जो होना है, जो बहुमत साबित करने के बाद इस तरीके से कल देर शाम भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नायब सिंह सैनी के द्वारा, उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है और कल जो है विधानसभा में वो जो है विशेष सत्र जो आ रहा है उसमें अपना बहुमत भी वो साबित करेंगे। जी ਜੈਦੀਪ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ बीते दिन देखने को मिला। जी बिल्कुल देखिएगा, हरियाणा के अंदर ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में करीब 21% जो है वो ओबीसी वोट बैंक है और ये पहला मौका होगा। इससे पहले जो है राव इंद्रजीत के जो पिता हैं वो राव वीरेंद्र, वो जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, ओबीसी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। नायब सिंह सैनी में ओबीसी वोट बैंक को जो साधने का प्रयास बीजेपी ने किया है
और अब लोकसभा चुनाव जो है कुछ ही समय बाद जो है हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जो है आचार संहिता लग सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा डेट जो है वो फाइनल हो सकती है, कब वोटिंग होनी है, कब चुनाव की डेट वो आने ही वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा फैसला जो है बीजेपी ने लिया है। तो अब ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या इस तरीके का जो फैसला है, क्या बाकी जो वोटर्स हैं और दूसरे समाज के जो लोग हैं उनमें क्या मैसेज जाता है और वो किस तरीके से बीजेपी के साथ आते हैं, बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अकेला इस तरीके का जो कार्ड होता है जातीय समीकरण वाला वो भी नहीं चलता, क्योंकि जी केंद्रीय नेतृत्व की जो पकड़ होती है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी छवि जिस तरीके से है, उनके कामों को लगातार गिनवाया जाता है, लगातार मोदी के नाम से ही चुनाव लड़े जाते हैं। लोकसभा चुनाव के जो सिनेरियो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और विधानसभा चुनाव का सिनेरियो अलग रहता है। तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव को लेकर इसकी जो नतीजे रहेंगे इस फैसले के वो अलग होंगे, लोकसभा चुनाव में इसके नतीजे अलग रहने वाले हैं। जी जयदीप, पर जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ बीजेपी ने ਅਜਿਹਾ फैसला लिया होवे। जी नहीं, बिल्कुल देखिएगा अनिल, मैं आपको बता दूं जैसे कल भी मनोहर लाल खट्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर काम संगठन के जरिए ही होता है, संगठन में नई जिम्मेदारी वो कैसे भी नजर आए। और ये चर्चाएं भी है कि ये लोकसभा चुनाव जो है वो करनाल लोकसभा से लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र में हो सकता है अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री गुड़गांव आए थे हरियाणा के दौरे पे, तब भी उन्होंने जो है मंच से जो है मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वो उनके पुराने साथी है, उनके साथ बहुत समय बिताया है और आज भी वो साथ थे, तब भी साथ है। तो बिल्कुल हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र में मनोहर लाल खट्टर को दी जा सकती है और ये बिल्कुल चर्चाएं जोरों पे है। खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि वो उनको जल्द नई जिम्मेदारियां जो है वो मिल सकती है, जिसके लेके उन्होंने इस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री का जो पद है वो छोड़ा है और उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री नायब सैनी उनको बनाया गया। जी जयदीप, इथे सवाल एक होर भी है कि हुण दुष्यंत चौटाला दा की बीते 4.5 साल तो उप मुख्यमंत्री रहे, हुण तमाम जो विरोधी धिर दे आगू ने वो निशाना इत्थे विन रहे हैं कि दुध विच पई मक्खी दे वांग उन्हां नूं कढ दिता गया। एक जेकर सियासत की असीं गल करदे हां तां आप अस्तीफा देना, आप अलग होना अलग हुंदा है, पर इत्थों जिस तरीके नाल कढिया गया उस नूं हुण दुष्यंत चौटाला किवें लैणगे, अगे उन्हां दी की रणनीति रहेगी, इस ते भी लगातार निगाहां टिकियां होईयां ने। जी बिल्कुल, देखिएगा आज भी हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी की आज एक बड़ी रैली जो है वो हिसार के अंदर जो है होने जा रही है। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की बात करें, क्योंकि जब 2019 के अंदर जब सरकार बनी थी बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से, तो बीजेपी के पास 41 जो है वो सीटें थी और 10 सीटें जो है वो जेजेपी से उन्होंने समर्थन उनको मिला था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, जिसमें हम बात करें एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, 11 से 12 डिपार्टमेंट अकेले उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला के पास थे। उनके अलावा पंचायत और एक और उनका मंत्री, 2 मंत्री और उनके बाद में बनाए गए। तो बिल्कुल एक अच्छा खासा जो है सम्मान जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला को दिया गया था। सबसे ज्यादा विभाग जो है, सबसे बड़े मंत्रालय जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास थे। ऐसे में और इसीलिए उनकी पार्टी के जो खुद के विधायक थे वो भी लगातार उनसे नाराज रहते थे और ये बात सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिस तरीके से राम कुमार गौतम की बात करें और तमाम लोग जो उनके विधायक थे, ईश्वर सिंह की बात करें, वो कहते भी नजर आते थे कि दुष्यंत चौटाला अकेले ही सबकी उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो सीटें थी, उनके दम पे अकेले कब्जा करके बैठ गए, इतने सारे डिपार्टमेंट वो खुद देखते हैं। तो नाराजगी उनकी पार्टी में ही थी। और अब जब जिस तरीके से बीजेपी के लोग लगातार कहते रहे कि दुष्यंत चौटाला के साथ उनका जो गठबंधन है वो सरकार के लिए गठबंधन था, ना कि पार्टियों का कोई गठबंधन है। हरियाणा में उनके पास सीटें कम थी और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सहारा लिया था जननायक जनता पार्टी का। लेकिन ऐसी कोई भी बात जननायक जनता पार्टी से नहीं हुई थी कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव, कि उनमें जननायक जनता पार्टी और भाजपा जो है वो एक साथ चुनाव में जाए, ऐसी कोई कमिटमेंट हुई ही नहीं थी।
सरकार को लेकर उनका गठबंधन था। और ये भी अब बीजेपी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पहले से ही मैसेज दिया जा रहा था कि आप अगर छोड़ के जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो अभी 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, 41 उनके पास है, तो सरकार वो आराम से चला सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे में अब जब लोकसभा सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो दुष्यंत चौटाला को अलग किया गया। आज बड़ी रैली जननायक जनता पार्टी की हिसार में होने जा रही है, तो उसमें देखते हैं किस तरीके का फैसला जो है वो दुष्यंत चौटाला लेते हैं। और उनकी पार्टी के जो 5 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें देवेंद्र बबली, जी जयदीप, इत्थे एक होर सवाल है। अज फ्लोर टेस्ट तो पहला विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। 10 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक है। की एजेंडा इस विधायक दल की बैठक का रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा विधायक दल की बैठक जो बुलाई हुई है वो विधानसभा की कमेटी रूम में ही होगी, और इसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे, कैबिनेट की मुख्यमंत्री जो 5 जो कैबिनेट जिनको कल शपथ दिलाई गई थी, 5 कैबिनेट मंत्री रहेंगे। उसके अलावा जो सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक हैं वो भी इस विधायक दल की मीटिंग का जो है वो हिस्सा रहने वाले हैं। बिल्कुल यही इस मीटिंग का एजेंडा यही रहने वाला है कि जो फ्लोर टेस्ट जो है विधानसभा के 70 जो बुलाया गया है बहुमत साबित करने का लेके, उसको लेके ही रणनीति बनाई जाएगी। और जब सदन के अंदर जब तमाम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जाएंगे तो उस मौके पे जाके जो फ्लोर टेस्ट होना उसमें अपना बहुमत जो है बीजेपी साबित कर सके, उसी की रणनीति को ये बैठक की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जयदीप तमाम जानकारी दे लई। तां विशेष सैशन तो पहला बीजेपी दी विधायक दल दी बैठक है, सीएम नायब सैनी दी प्रधानगी हेठां ये बैठक होवेगी ते इत्थे जो दावा किया जा रहा है 48 जो विधायक ने ਉਹ नायब सैनी दे नाल हन, ये दावा किया गया ते अज फ्लोर टेस्ट पास करना जरूरी है ते उसकी तैयारी विच बीजेपी इस समय ते नजर आ रही है। ते उत्थे हिसार विच जेजेपी वल्लों वड्डी एक रैली की जाएगी, उस दे विच भी वेखना अहम रहेगा कि अगे हुण जे